So let's start our debate series, which are winners. A warm good evening to all of you present here. My name is Vishal Singh Rathore, organizing head of Karm Yogi, Rajasthan's one and only civil services society. I will be the host till the end. I also welcome our honorable chief guest, Dr. Vishwa Chaudhary, ma'am, from Department of Psychology, University of Rajasthan. Most welcome, ma'am, on our esteemed debate series, which are winners. Before calling the participants, let me read out rules of this debate. Our topic is British rule in India, destruction or development. First, do not use words that hurts public sentiments. Rule number second, can use language either English or Hindi in favor and against. Do not use mixed language. Each participant allowed to speak for 3 minutes. All clear? Let's start our debate series. Now I would like to call our first tag number, tag number one, Manas Khandelwal. May I start? Yes, So, a very warm greetings to one and all present here, and especially to honorable chief guest. I, Manas Khandelwal, would like to speak on the topic British rule. Uh, Sorry, I have to speak on destruction or uh, development. That you need to choose, Manas. Okay. I would like to speak on the development that happened to India during the British rule. So, if we try to analyze the developments that have been through the British rule, there are three kinds of development, that is political, social, and economic. First, we'll try to analyze the economic development. So, in the case of economic development, the British rule established a lot of infrastructure in the Indian society by establishing railways, ports, telegraphs, postal system networks, by road establishment, transmission lines. So these all boosted the kind of transport and communication network that we as a society needed. If we talk about the social development that was caused, the British rule eradicated all kinds of caste system. It helped to eradicate the sati system, which was very prevalent in India, and simultaneously it unified the India by dismissing all types of caste discrimination that was happening in India. Also, if we talk about the education reforms caused in India, the Thomas Macaulay Act that was passed in 1835 brought a rational and scientific level of thinking, which developed India into a more enhanced level of learning and education, which gave a more boost to enhanced level of education system in India. Also, if we talk about certain political system, the Government of India Act 1919 and the Government of India Act 1935 laid a parliamentary system, defined the foundation of a parliamentary system, which is possible in current today, and India is following the same system. So the basic foundation and deep roots of our government system and parliamentary system finds way back in the British system. If we talk about certain industries as well, so the British tried to enhance the textile industries by purchasing the raw materials from us and creating a market, simultaneous market for better enhanced quality in India. Also, there was certain establishment of the commercial crops, introduction of certain commercial crops instead of the old system of traditional practices of the normal crops such as wheat, rice, etc. So the British introduced certain commercial crops, jute, cotton, etc., which gave a more enhanced way of privilege to the Indians. The major proportion is that the British eradicated the all old traditional system of farming and brought a new modern and enhanced way of approach. In conclusion, if we would like to say that the British developed India into a more scientific and better way of better level way of thinking and eradicated all the old system and low level of living of the Indians. Thank you.
Thanks, Manas, for sharing your precious word. Now I would like tag number two, Sunit Marwal. नमस्ते मैम, नमस्ते एवरीवन। Yes, मेरा नाम सुमित मारवाल। मैं ब्रिटिश जो थे उनके विरुद्ध बोलना चाहूंगा। जैसा मानस ने बोला कि हमारे आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी ब्रिटिश में, लेकिन 1700 के अंदर, जब ब्रिटिश नहीं थे, 1700 के अंदर हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी, विश्व की योगदान था भारत में, वो 27% था जीडीपी का। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने अब भारत छोड़ा, उस वक्त सिर्फ 3% था, ओनली मात्र 3% का जीडीपी थी हमारी। जहां आज के टाइम पे हमारी जीडीपी 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स है, वही उस वक्त 45 ट्रिलियन डॉलर थी जो ब्रिटिशर्स ने उस वक्त हमारे भारत से छुड़ाई थी। और इसका कारण मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। भारत ने हमें सिर्फ आर्थिक उपनिवेश के रूप में, भारत ब्रिटिशर्स ने सिर्फ हमें आर्थिक उपनिवेश के रूप में आंका है। हमारे बहुत सारी तो व्यवस्थाएं लगा दी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और कई तरह की व्यवस्थाएं। जैसा कि मानस ने बोला कि हमारे भारतीय रेल चलाई, रोड्स बनाई, सड़कें बनाई, पोर्ट्स बनाए, लेकिन उनका सिर्फ उन स्वार्थ था, सिर्फ ब्रिटिश का स्वार्थ था उसके अंदर। जो रेलवे थे वो क्यों बनवाया? जो कारीगर थे उनके आवागमन के लिए, अंतर्देशीय निर्यात के लिए, उनके लिए सिर्फ रेलवे चलाई थे, रोड चलाई थी। और दूसरे बताऊं मैं आपको, 1850 से 1899 के बीच ब्रिटिशर्स इतनी कुप्रबंधन प्रणाली थी कि 1850 से 1899 के बीच 24 अकाल आए, 24 अकाल आए, जिसमें 1770 में बंगाल अकाल सबसे महत्वपूर्ण था। सबसे महत्वपूर्ण था। और आपको बता दूं कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ फूट डालो राज को नीति वाला अपनाया है। उन्होंने हमारे कास्ट सिस्टम से, हमारी जाति व्यवस्था में, सिर्फ धर्म में सिर्फ जहर घोला है। इसलिए तो आज हमारा भारत पाकिस्तान अलग है। हम अखंड भारत की बात करते हैं। यदि ब्रिटिशर्स हमारे भारत में नहीं आते तो हमारा भारत अखंड होता। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे साथ होता। जहां हमारी सेना चौथे नंबर पे है, वही पहले नंबर पे होती। हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी सबसे ऊपर होती। यही बात थी। और आपको बताऊं मैं, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, जो ब्रिटिश नागरिक थे उनको एक तरफा मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। तो अगर विकास, एक भारत का विकास करना था, तो उनको एक तरफा मुक्त व्यापार की जरूरत क्या थी? दो तरफा करते। मतलब ब्रिटेन से कोई माल आएगा वो सस्ते दाम में आएगा, लेकिन भारत से अगर कोई आयात या निर्यात होगा वो महंगा होगा। ऐसा क्यों? अगर उनको विकास ही करना था तो दोनों तरफ से दो तरफा अनुमति देते मुक्त व्यापार की। और उद्योगों के जिस वक्त ब्रिटेन में औद्योगिकरण चल रहा था, वो भारत में उपनिवेशीकरण था, जिस कारण उद्योगों का सिर्फ पतन हुआ। जो हथकरघे और जो हमारी कपास थी, उनका सिर्फ पतन हुआ, जिसके कारण वहां के कारीगरों को गांव की ओर रुख करना पड़ा और कृषि पर दबाव पड़ा, जिसके कारण कृषि में उर्वरता कम हो गई। और आपको बता दूं, जैसा कि मानस ने बोला, हमारे सुनित 3 मिनट्स हो गए आपके। थैंक्स सुनित, आपने काफी अच्छे तरीके से मानस के व्यूज को काउंटर किया है। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल टैग नंबर 3, दीपक साहू। टैग नंबर 3, दीपक साहू। Good evening to all. I am Deepak Sahu. Now I would like to speak about the development of British rules in India. So we can segregate the development of British rules in three major contexts like economic impact, social impact, and political impact. So when we talk about economic impact, so we see that the Britishers came in India, but the policies centered around the infrastructure development like the roads, railways, bridges, which connected the people of remote areas of country, and they earlier there were no any such type of infrastructure which could connect the all Indians here. So it helped the Indian national movements because Mahatma Gandhi ji and all other national leaders now could collect more people for national movement. Second is modern industry.
So establishment of modern industries like Tata steel plants and many other, because India was not able to establish it by itself. Third is banking financial system. We see that RBI is one of the best central bank in the world. So it was established by the Britishers by the Government of India Act 1935. When we talk about the social and cultural development of British rules, we see that they removed many unsocial kind of unhuman kind of practices like sati pratha, where women were they were they were fired with their dead bodies of their husbands, and they revolutionized the Indian education system by introducing the universities and college systems, and like our national leaders like Mahatma Gandhi, Rajaram Mohan Roy, they were also educated in English institutions, so which helped them to understand the nature of British policies, and they could counter them very well. Third is unified legal system, because India was ruled by the many kings, so they could not unify the Indian legal system. So Britishers unified Indian legal systems, which brought one type of punishment for one kind of crime. Third, we talk about political impact. So Britishers established the foundation of democracy in India. We can say it was a change from Prajatantra to from Rajtantra to Prajatantra, because India was, we can say it was highly divided by many rulers. There were social disharmony in the country, but when they came, so they established the democracy, which is still prevalent in India, and we are one of the biggest democracy in the world. And l- second political development, we can say introduction of modern administration system, because we have standard courts, we have codified laws, and entry based civil servants entry, because earlier it used to happen that those who were relatives of kings, they used to come in the main administrative policy, but now with the coming of Britishers, we had merit based system, and now those who were capable of doing the capable of handling the situation, they were able to come. So this is also. Thanks, Deepak. Your time is over. Thanks for sharing your precious words. Now I would like to call tag number 4, Yogesh Soni. Tag number 4, Yogesh Soni. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम योगेश सैनी है और मैं भारतीय, आवाज आ रही है? यस, जो आवाज आ रही है। हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में जो ब्रिटिश शासन था उसके बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। जो भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसको ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के रूप में संदर्भित किया जाता है। मेरा मानना है कि जो भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेश काल का शासन रहा उसमें जो ब्रिटिश द्वारा जो कार्य किए गए उनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के इम्पैक्ट भारत पर हुए हैं। तो मैं एक बैलेंस मतलब संतुलित निर्णय लेना होगा कि ये भारत के लिए सही था या नहीं। तो मैं कुछ पॉइंट्स के आधार पर ये बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से अच्छा कार्य किया है और किस प्रकार से उन्होंने मतलब जो भारत में एक प्रकार से नेगेटिव या नकारात्मक भूमिका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सकारात्मक जो पॉइंट्स हैं ब्रिटिश के द्वारा जो इंडिया में काम किए गए उनके बारे में बताना चाहूंगा। ब्रिटिश के द्वारा जो शिक्षा का आधुनिकीकरण किया गया, जैसे इंग्लिश लैंग्वेजेस का मतलब वो प्रसार किया गया, उसको बल दिया गया, जिससे हम ग्लोबल स्तर पर अपनी इकोनॉमी जुड़ पाई। साथ ही जो हम अलग अलग क्षेत्रों में एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये मतलब वैश्विक स्तर से जुड़ पाए। दूसरा है कि जो सामाजिक कुरीतियों का जो विरोध है, मतलब उनका जो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा कार्य था, जैसे सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया है। साथ ही सामाजिक सुधार हो गए और आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास।
जिसमें रेलवे लाइन, सड़क, पुल आदि का निर्माण था। और मैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि जो किस प्रकार से ब्रिटिश मतलब इंडिया को प्रभावित किया है इन्होंने। नेगेटिव पॉइंट्स के रूप में औद्योगिकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था को उनसे मतलब काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि कुटीर उद्योगों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा वो जड़ से नष्ट कर दिया गया। भारतीय संस्कृति पर प्रभाव काफी पड़ा है। साथ ही धन का जो निष्कासन है वो भी मतलब काफी इम्पैक्ट है। साथ ही जो किसानों के साथ जो नीति अपनाई गई वो भी मैं मानता हूँ कि दूर थी। ये जो पॉइंट्स हैं इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन का जो कुछ क्षेत्रों में मतलब जो प्रभाव था वो अच्छा भी रहा है, बाकी नेगेटिव भी रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पर्सनली ये ज्यादा ज्यादा इम्पैक्ट नेगेटिव रूप से ही हुआ है। शुक्रिया योगेश अपने विचार रखने के लिए। एक जेंटल रिमाइंडर है, आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज करें, मल्टीपल लैंग्वेज यूज ना करें। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल टैग नंबर 5 दिग्विजय। आदरणीय अतिथि महोदया को मेरा सादर प्रणाम तथा प्रभु श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। मैं आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। इतने कम समय में भारत अंग्रेजों ने भारतीयों पर कितने कष्ट किए, ये सब लोग भली भांति जानते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार को इतने कम समय में व्यक्त करना असंभव है, लेकिन फिर भी मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जैसे कि मेरे दोस्त ने अभी ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत में औद्योगिकरण किया, लेकिन ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। 1800 से लेकर 1850 का काल भारत के अंदर विऔद्योगिकरण का काल था। विऔद्योगिकरण का मतलब ये होता है कि जिसमें छोटे उद्योगों या पारंपरिक जो उद्योग हैं, उनको पूर्णतः नष्ट कर दिया जाता है और उनके स्थान पर बड़े उद्योगों की भी स्थापना नहीं की जाती। तो ये कौन सा औद्योगिकरण है? दूसरी बात, मेरे साथी ने कहा कि जो भारत में जो रेल है वो अंग्रेज की देन है, लेकिन ये बात भी पूर्णतः सत्य नहीं है। हालांकि अंग्रेजों ने भारत में रेल का निर्माण किया, लेकिन वो केवल और केवल ये किया था। अंग्रेजों ने भारत में रेल का निर्माण किया ताकि तैयार व कच्चे माल का आयात किया जा सके, न कि भारतीय नागरिकों के आवागमन के लिए। दूसरी बात कि जब भारत में रेल का निर्माण किया गया तो उसका कार्य पूर्णतः विदेशी कंपनियों को सौंपा गया, न कि भारतीय कंपनियों को। अगर वो भारत में अगर सच में विकास करना चाहते थे तो कुछ हिस्सा भारतीय कंपनी को भी सौंपते। और तीसरी बात, ये सबसे बड़ी बात, जो रेलवे का जो निर्माण हुआ तो 5% विदेशी का निवेश किया गया था, जिसे भारतीय लोगों ने कि अंग्रेजों ने। और चौथी बात, उस समय जो लोहा उद्योग थे उस पर अंग्रेजों ने ये दबाव डाला, जो लोहा उनका प्रयोग केवल और केवल लोहे की पटरियां बनाने के लिए किया जाएगा, जो एक तरफा उपयोग होता है। और अभी मेरे साथी ने कहा कि अंग्रेजों ने सड़कें, इतनी बात सत्य नहीं है। अगर भारत में वो विकास करना चाहते थे तो केवल और केवल उन्होंने शहरों में ही सड़कें क्यों बनाई, उन्होंने गाँव में सड़कें क्यों नहीं बनाई? जब अगर वो विकास करना चाहते थे तो गाँव और शहरों दोनों में सड़कें बनवाना चाहिए था ना। ये कौन सा विकास है कि एक तरफ सड़कें बनवा दी? और फिर अभी मैंने एक दोस्त ने कहा कि उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। ये बात सही है कि उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, लेकिन इसके पीछे क्या कारण? राजा राममोहन राय ने कितना भयंकर आंदोलन किया था कि उन्हें मजबूर होना पड़ा सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए, और 1829 में लगाई गई थी। अंग्रेजों ने अगर सती प्रथा पर रोक पहले अंग्रेजों ने भारत में बहुत पहले अधिकार शुरू कर दिया था, लेकिन अगर वो वास्तव में सामाजिक विकास चाहते तो पहले अपने सती प्रथा पर रोक लगा सकते थे, और तो ऐसी सामाजिक कुरीतियां थी जिन पर वो रोक लगा सकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक विकास में कुछ ज्यादा महत्व नहीं दिया। और दूसरी बात है, अंग्रेजों ने भारतीय लड़कियों की मानसिकता ऐसी कि उन्हें मां बनाकर उनके बच्चों को स्वीकार भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों ने जब इतने विकास के कार्य किए तो उस समय के भारत के जितने महान राजनेता जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका विरोध क्यों किया? जब वो विकास के कार्य कर रहे थे तो उन्हें उनके पक्ष में होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों ने उस समय भारत के अंदर सांप्रदायिकता के ऐसे बीज डाले जो आज भी लोगों को उसके कड़वे फल आज भी लोगों को खाने पड़ रहे हैं। मैं अपनी बात शुक्रिया दिग्विजय, आपने काफी अच्छे से अपने विचार रखे।
Now I would like to call tag number 7, Aditya Jangir. Good Tag evening, number 7. respected ma'am. Good evening, respected ma'am, host, and my fellow debaters. I've been giving ears to all the debaters. They all were articulate, pragmatic, and highly solution oriented. Now it's my turn, so I'm of the opinion that the Britishers, rather than development, did more destruction to India. Unlike other invaders, they did not want to be seen as barbaric. They were more refined and polished, so they did not demolish any monuments and or temples. They rather demolished the economy of India. For this, they adopted the policy of one-way free trade, which allowed British manufacturers to export goods to the Indian markets at a nominal fee, due to which Indian merchants suffer from heavy economic loss. Similarly, Indian farmers were forced to plant and cultivate indigo, which in turn made their land infertile and barren. Dalhousie, Governor General Lord Dalhousie, formulated the policy of formulated the policy of doctrine of lapse, according to which if a king die without a natural successor, his kingdom would be seized and would not be given to adopted or collateral successor. And in 13 April 1990, a group of people were gathered for a political discussion. Then General Dyer came there and shooted them, and them they were unarmed. About 371 men, women, and children were killed, and Dada Bhai Naroji used a phrase "shakkar ki churi," which means knife of sugar, for the British Raj or rule, which means it is smooth and sugary, but at the end of the day, it's knife. It means it used to express the oppression and hostile feelings of him towards the Britishers. It's done from my side. Thanks, Aditya, for sharing your precious words. Now I would like to call tag number 9, Piyush Meena. So, good evening to all. Good evening to ma'am. Thank you for providing this opportunity for our holistic development. So, I would like to tell on destruction part, that is negatives on British policies. Firstly, British came, and then first of all, they analyzed our weaknesses through translating our scriptures like Bhagavad Gita, and then they made strategies like Fits India Act, Regulating Act, Charter Act, and even not only these, but also commercialization of agriculture had done by them, which led to the severe poverty, destruction, and even thousands of deaths. So these shows that what is the development of them, and all, and also that they made
they also identified weaknesses like disunity in the rulers and made divide and rule policy, and also create a hindrance in our country, not only in our country but also in our society. And that is why Albert Einstein also said that science without religion is lame, but religion without science is blind. That means both are necessary and both are complementary elements, because India at that time, that means in the Britishers' time, was mainly of religious dogmas, prejudices, stereotypes, etc. And we have lack of rationality, lack of like logical reasoning. So they identified them and work on them. So what it shows? It shows that history teaches us lots of teachings, and gave opportunity to fulfill these mistakes which could not commit in the future. And also history teaches that about countries' sovereignty, political integrity, unity can be done through various ways. So this is about the aspects of British policies, and I try to express my words from this side. Thank you. Thanks, Piyush Meena, for your precious words. Now I would like to call tag number 10. Yes, Jha. Yes. Am I audible? Yes. Okay. A very good evening to our esteemed guest, Dr. Vishwa ma'am, and my fellow debaters. My name is Yash Jha, and I will be speaking against the motion. India was once known as the Golden Sparrow before the arrival of British East India Company, who acted as the vultures who destroyed us economically, socially, culturally, and psychologically too. They looted us so much that the English dictionary have to add the word loot in their dictionary. They ruined us economically, and the most affected sector was our agricultural sector and our traditional industries. Traditional industries, for example, glass, pottery, spinning industry, cotton industry, were the most hated. Some of my fellow debaters praised the Britishers to bring railways in India. Remember this, that the same railway was used for the in the remotest villages of our country to uproot these traditional industries and sell our raw materials to the to their own nation and sell us back our finished foreign products, which were very profitable to them. In agriculture, as the agriculture was our main occupation, their policies, for example, their land settlement systems, put the huge amount of revenue pressures on our peasants, which affected their mental well-being too. For some facts I would like to mention that between 1911 to 1941, our food availability declined 29%. We talk about the life expectancy in our country. It was only 32 years. But if we compare it with the other countries, for example, European countries, North American countries, it was above 60 years. It was a huge gap. Some other facts, for example, they spent 360 crores on railway, but they haven't invested more than 50 crores on the irrigation. So which could be benefited millions of the cultivators and provided them to commit suicides and other things. They forced us to cultivate the plantations like indigo, and we all know that how this indigo deteriorated our environment and how it impacted our motherland. Next, I would like to say that some of my fellow debaters also mentioned that they made us civilized. They generated the scientific curiosity. So for that, I would like to say that according to them, the civilized Indians were the Indians who followed Western values and gave away their own native and indigenous value systems. And they treated us like we didn't have any identity
or they misunderstood us as highly primitive and backward class. And they made sure that we think of them as superior and that we follow their oppressive orders and voluntarily destruct our own country. Uh, at last, I would like to say that they questioned our identity, they questioned our way of living, they made us oppressed, means oppressed us for more than 200 years. And for that, for I missed the single point about the scientific curiosity. I can give the example of Ayurveda. I can give the example of Charas Samhita, Susur Samhita, and the great polymath. यश आपका टाइम ओवर हो चुका. Thanks for sharing your words. Now I would like to call tag number 11, Ritik Agarwal. Tag number 11, Ritik Agarwal. Is he in meeting? मुझे लगता है ये मीटिंग में नहीं, तो हम आगे चलते हैं. I would like to call tag number 12, अंकित कुमार यादव. Tag number 12, ये भी नहीं है. Tag number 13, हरीश चौधरी. Tag number 13. Tag number 14, Munindra Meena. Good evening, Vishwa ma'am and all my dear friends. So, let me tell you about the British Raj on India. The Britishers taxes from farmers collect taxes from farmers without any reason, and they brought spices and textiles from India at very low cost, and they sell them in foreign at very high cost. So this is the problem in that time we are facing. We are Indians are facing in that time. So here not we are going to discuss on whether the Britishers are going to development or destruction in India. Here, what is the reason behind the British rule in India? They only purpose to the Britishers have aimed to divide and rule. They just divided on the basis of caste, on the basis of religion. They divided Hindu and Muslim, and they divide the state of Bengal, state of West Bengal. So here, so I am in favor against the Britishers because they do many works which are unfair. We cannot forget the revolt of 1857. We cannot forget the sacrifices of our Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, and many others. They do lot of work for our country, and we can never forget for all time this. So the British rulers, I just want to say my last word. The British rule is not fair in India in that time. Thank you so much. I would like to speak. Thank you so much, Vishal. Now Thank I you, am Munindra. turning off my mic. Thanks, Munindra. Now I would like to call tag number 16. Tag number 15, Aryan Sharma. Tag number 15, Aryan Sharma. Please no. Tag number 16, Varun Singh Rajpurohit. Tag number 17, Ravi Singh Gudda. Tag number 18, Rajesh Singh. Tag number 18, तो सभी कंप्लीट हो चुके हैं मुझे लगता है. तो
मैम आपने विनर्स डिसाइड कर चुके हैं अभी तक, सो आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर विश्वा चौधरी मैम टू अनाउंस आवर ये विनर्स। एक रह गए हैं, ये हाथ इशारा कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको देख लीजिए। एक सेकंड। हाँ, ये नाम है ना इनका, रजनीश कुछ ऐसे नाम है इनका, आर से। टैग नंबर 18 रजनीश। राजेश माइक ऑन राजेश, करो राजेश। यस राजेश, अपना माइक ऑन कीजिए। राजेश अपना माइक ऑन कीजिए। आई एम ऑडिबल? यस, सब आवाज आ रही है आपकी। देखिए, भारत में अगर ब्रिटिश शासन की बात की जाए तो पक्ष पे हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि भारत में जो औपनिवेशिक नीतियां थी उन्होंने विकास भी किया, तो हम इन दोनों आधारों को लेना चाहेंगे। मैं कुछ पॉइंटों के माध्यम से आपको बिंदुओं के माध्यम से बताना चाहूंगी कि ब्रिटिश शासन का भारत में औपनिवेशिक लूट भी थी, उनमें उन्होंने विकास भी किया। तो पहले हम उनके पक्ष में जाने की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया, उसने 1947 का जो स्वतंत्र अधिनियम आया था उसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और जेनिंग्स ने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो भारत का संविधान है उसमें महत्वपूर्ण योगदान 1935 के भारत शासन अधिनियम का था। और जो वर्तमान हम संघ लोक सेवा आयोग देखते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, तो वो 1919 के मोंटेगू फोर्ड सुधार के माध्यम से आया। और हम देखो, एक बात ये भी है कि भारत में जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है उसमें उसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान भी ब्रिटिश शासन का माना जा सकता है। आरबीआई का प्रावधान भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से लाया गया था। जो रामेश्वरम को भारत से जोड़ने वाला पंबन ब्रिज है, जो रेलवे का विकास है, वो भी ब्रिटिश शासन में लाया गया। और बंगाल में, मुंबई, मद्रास में, बिहार में और संयुक्त प्रांत में अगर द्विसदनात्मक विधानमंडल की बात की जाए तो उसका विकास भी ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। और अगर हम अनुच्छेद 246 की बात करें तो जो केंद्रीय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का है, उसका जो विभाजन था वो भी उनके जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें महत्वपूर्ण योगदान था। अगर विपक्ष की बात की जाए तो उसकी जो औपनिवेशिक नीतियां थी वो बहुत ही कटुतापूर्ण थी। और उन्होंने 1905 में जो बंगाल विभाजन किया और सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों और हिंदुओं का विभाजन किया, जो कि असहयोग आंदोलन का जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ये बहुत ही कटुतापूर्ण एवं भारतीयों को चौंकने वाला था। भारत में जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसका मुद्दा अगर वर्तमान उस तत्कालीन समय में संयुक्त राष्ट्र में ना लिया जाता तो ये जो वर्तमान जो आतंकवाद देखा जा रहा है पाक अधिकृत कश्मीर पे, ये बहुत ही कम होता। बर्मा को भारत से अलग करना, पाकिस्तान भारत का विभाजन, ये उनकी जो नीतियां थी वो बहुत ही, उन्होंने हमारे शासन को बहुत ही दुष्प्रभावित किया। जो चंपारण किसान आंदोलन था, जो नील की खेती था, रेड कबाड़ी मालवाड़ी जो सिस्टम था, वो बहुत ही निराशाजनक था। अगर बात की जाए जमींदारी की, तो जो जमींदारी व्यवस्था थी वो बहुत ही दुष्प्रभावित करने वाली थी। और दादा भाई नौरोजी ने जो धन का निष्क्रमण सिद्धांत दिया, उनके अनुसार जो यहाँ से जो ब्रिटिश थे वो सस्ती दरों पर सूती वस्त्र ले जाते थे, लेकिन वहां पे जो औद्योगिक क्रांति के माध्यम से नई जो ओके डन। थैंक्स राजेश जी, थैंक यू। आपने पक्ष रखा अपना। नाउ आई हैंड ओवर द मीटिंग टू आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण सिंह। थैंक यू विशाल। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, डॉक्टर विश्वा चौधरी मैम एंड सीनियर एडवाइजर्स एंड कर्मयोगी टीम, कर्मयोगी सोशल सर्विस सोसाइटी के द्वारा आज हमारे हालिया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी सम्मानित उपस्थिति से हमें सम्मानित करने के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपके प्रेरक शब्दों और मूल्य अंतर्दृष्टि ने उपस्थिति सभी लोगों को गहराई से प्रभावित किया, जिससे हमें अपने प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की प्रेरणा मिली। आपका समर्थन और प्रोत्साहन अत्यधिक सराहनीय है
और हम आपके ज्ञान को हमारे समुदाय यानी सोसाइटी के साथ साझा करने की आपकी इच्छा से बहुत प्रेरित है। आपकी उपस्थिति ने निसंदेह हमारे इस विचार विमर्श और डिबेट सीरीज ऑफ कॉम्पिटिशन्स को महत्व बढ़ाया और हमें नई ऊर्जा का उद्देश्य प्रदान किया। मैं इस अवसर पर पूरी कर्मयोगी टीम को अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम को एक शानदार सफलता बनाने में आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, निर्बाध समन्वय, महत्वपूर्णता, उत्कृष्टता और टीम वर्क के प्रति प्रत्येक सदस्य की प्रतिबद्धता भी वास्तव में सराहनीय है। साथ ही मिलकर हमने भविष्य के आयोजनों के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया है और मुझे विश्वास है कि निरंतर सहयोग और समर्पण के साथ हम और भी अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। एक बार फिर से मैं हमारी मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर विश्वा चौधरी मैम आपके मूल्यों और योगदान के लिए धन्यवाद और कर्मयोगी टीम को आपके इस अद्भुत समर्थन के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। अब मैम आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो विनर है वो आपने शायद तक डिसाइड कर लिए होंगे, तो कृपया आप उनकी घोषणा कर दें और अपना एक मैसेज कर्मयोगी द सिविल सर्विस सोसाइटी को और जो हमसे जुड़े बच्चे वो दें। धन्यवाद। धन्यवाद कल्याण। Thank you Karmyogi Society for having me here for this debate competition. Hearing all the students about their views, they have presented so well. So I want to give few of the inputs from my side. Apart from the awards, I must say that all the participants, they have phenomenally presented their views, okay? This is our time to have our views, accumulation, and then the way we have to learn, and we are learning. We are in that process of learning to accumulate our views and the way to present them, okay? So I just want to give 2 to 3 points or my inputs as a psychology teacher, because wherever I go as a judge, I always try to give few of the inputs so that these students or you as a student can use these inputs in your future, okay? जब हम भाषा की बात करते हैं, है ना, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा चाहे कोई भी हो, लैंग्वेज इज योर चॉइस, ओके? हिंदी भाषी है तो कोशिश ये कीजिए। वैसे तो टीम ने जब अनाउंसमेंट किए थे रूल्स के, तो उन्होंने रूल्स में सबसे पहले ये बोला था कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज करें, लेकिन लैंग्वेज एक रखें, बायलिंगुअल ना रहे बीच में, ठीक है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जिस लैंग्वेज पे स्टिक है, ठीक है? मैं बहुत सारे बच्चों को देख रही थी कि दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो इंग्लिश में अपने ओपिनियन दें। उनको एक बार बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट करूंगी मैं, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, ठीक है? हमें उन पर ज्यादा गौर करना चाहिए जो ट्राई नहीं कर रहे हैं, जो भाषा में बीच बीच में आधे अंग्रेजी शब्द ला रहे हैं, आधे हिंदी के शब्द लेकर आ रहे हैं। नहीं, उनके लिए एक बार जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगी कि जिन्होंने पहली मर्तबा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैं जानती हूँ कि वो हिंदी भाषी हैं, लेकिन उन्होंने ट्राई किया कि वो इस बार इंग्लिश में देंगे। आई मस्ट अप्रिशिएट दैम, ओके? सो एक तो इस चीज से सीखे, अपनी भाषा चूज करें। और ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो हमारे ही जो बोलते हैं ना इंटर सर्कल में ही है, हमारी कॉलेज के बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड्स के बीच में, हमारी सोसाइटी है, ट्राई टू यूटिलाइज आवर ओन टाइम टू मेक यू ग्रो। आप कैसे ग्रो करेंगे, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करो, क्योंकि यहीं से आप लोग सीखेंगे। आज मेरे पास में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए, मैंने सारे पार्टिसिपेंट्स की जो उनके अच्छे पॉइंट्स थे वो मैंने उसमें लिखा। अगर वो यहाँ है मेरे बीच में, तो मैं एक एक पार्टिसिपेंट का बस कुछ पॉइंट्स लेना चाह रही हूँ। एक तो सबसे पहले जो डिबेट का आज का जो टॉपिक था, ठीक है, कल्याण, विशाल, क्योंकि तुम लोग ऑर्गेनाइजिंग टीम के हो, हमेशा याद रखो आप जो भाषा यूज कर रहे हो, आपके आज का वो क्या था, टॉपिक क्या था? कल्याण, आज का टॉपिक क्या था? रूल इन इंडिया, रिस्ट्रिक्शन एंड डेवलपमेंट। हाँ, अब जो ये भाषा है, अब ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब रूल टर्म आ गया हमारे ऊपर, ठीक है, सो हम डिस्ट्रक्टिव यूज नहीं कर सकते वहां पे। गेटिंग माई पॉइंट, विशाल? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड?
जब रूल हमने लिख दिया तो डेवलपमेंट तो ओके, आप दिखाना चाह रहे हो कि उनके उस रूल में हमने डेवलप क्या किए, लेकिन इसकी जो फ्रेमिंग होनी चाहिए ना, ये थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए। आपने बता ही दिया ब्रिटिश रूल, या तो आप लिखते कि ब्रिटिश पीरियड आपका डिस्ट्रक्टिव रहा, या तो डिस्ट्रक्टिव इज नॉट द राइट टर्म टू यूज, ठीक है। उन्होंने हमें इन्वेड किया, रूल किया है हमारे ऊपर उन्होंने, लेकिन डेवलपमेंट ओके शब्द चल सकता है, डिस्ट्रक्टिव टर्म वहां नहीं चल सकता है। तो आगे से जब भी हम बनाएंगे ना, तो इस पर बहुत गौर करना कि हम डिबेट का क्या रख रहे हैं, टॉपिक क्या रख रहे हैं। अब अगर आप फॉर में रखना चाहोगे तो आगे वाले इंसान को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा कि फॉर किसके लिए, ठीक है, हम किसके लिए फॉर में बोले, डिस्ट्रक्टिव के फॉर में बोले या डेवलपमेंट के फॉर में बोले। ऐसा सेंटेंस हमेशा बहुत क्लियर उसमें होना चाहिए कि फॉर वाले को भी समझ में आ जाए और अगेंस्ट वाले को भी समझ में आ जाए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एक एक बच्चे का मैं उठा रही हूँ। मानस ने सबसे पहले दिया था, अगर मानस है तो मानस ने रोड्स, रेलवेज, एजुकेशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मानस ने अपने उसमें बहुत अच्छे से बहुत वेराइटी ऑफ उसमें लेकर अपने जो पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट का काम किया है। तो ये एक अच्छी चीज थी कि इन्होंने बहुत सारे एरियाज को टच किया था, इन्होंने रोड, रेलवेज को भी लिया, इन्होंने एजुकेशन को भी टच किया। सुमित मारवाल थे जिन्होंने आर्थिक स्थिति, कारीगर, हेल्पिंग, इकोनॉमी, कृषि। सुमित बच्चा आपका वो बहुत अच्छा था, लेकिन आपने जो बीच बीच में आप अंग्रेजी भाषा के शब्द यूज कर रहे हैं ना, कोशिश कीजिए कि जब आप हिंदी भाषी हैं तो इन शब्दों का रूपांतरण भी आप हिंदी में ही करें, उससे आपकी और मजबूती, वजन रहेगा आपकी बात पे। दीपक साहू ने बहुत अच्छी बात की थी, इन्होंने डेवलपमेंट की बात की, इन्होंने ब्रिटिशर्स की जुडिशियल सिस्टम की, जो कि बहुत अलग था, पहले वालों ने नहीं दिया था, जुडिशियल सिस्टम की उन्होंने बात की थी, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी की उन्होंने बात की थी, मेरिट बेस्ड सिस्टम की बात की थी। जब भी हम किसी भी तरीके के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से अपने डेटा के साथ में पॉइंट्स को रखा है कि ये डेटा है। Whenever we are touching any new area, we have to support our point with some examples and with some data, ताकि वो वेरीफाई हो सके, उसकी बात की मजबूती हो सके। इसके बाद में हमारे योगेश सेनी आए थे, इन्होंने रिमूवल ऑफ सती, इन्होंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों करके दिया था, लेकिन जो इनका एक अच्छा पॉइंट मुझे लगा था वो लगा था कि इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को टच किया था। आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल पाए, इसलिए बहुत क्लैरिटी नहीं आई आपके उससे, लेकिन आपने अच्छी तरह से इसको दिया था। दिग्विजय जिन्होंने डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज के बारे में बताया और इंडिया पे एक लंबे दौर तक उन्होंने रूल किया, आपके उसके अंदर मुझे कुछ नया नहीं मिला है ना। उन्होंने आपने डिस्ट्रक्टिव के बारे में बताया, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स है डिस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, काश आप किसी एग्जाम्पल को टच करते। आदित्य ने बहुत अच्छे से, आदित्य का जो मुझे बहुत अच्छा एक पॉइंट लगा था वो था कि दादा भाई नेहरू जी को इन्होंने कोट किया और इन्होंने नाइफ ऑफ शुगर की बात यहाँ पे की थी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी डिबेट कंपटीशन में जाएं, कोटेशंस या कोट उस टाइम का, सोशल लीडर का, या कोई अभी के किसी कोट से आप उसे कर सकते हैं। हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब हम डिबेट की शुरुआत ही किसी कोट के साथ में करें। सो ऑलवेज ट्राई कि आपको 2-4 कोट्स ऐसे हमेशा रिलेटेड टू दैट टॉपिक पता हो। तो आदित्य के उसमें मुझे ये अच्छा लगा था। 9th पीयूष मीना, तो जिन्होंने ब्रिटिशर्स के बारे में ये कहा कि दे वर स्टीरियोटाइप्ड, प्रेजुडाइज्ड, ये जो वोकैब उन्होंने यूज की थी ये बहुत अच्छी थी, बहुत वोकैबलरी में उन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया था। मैं चाहती हूँ कि पीयूष जब नेक्स्ट टाइम तुम दो बच्चा तो और भी फ्लुएंसी लेकर आओ। बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी तरह से अपने पॉइंट्स तुमने रखे थे, सो वंडरफुल। लेकिन मुझे इससे ये भी पता चल रहा था कि तुमने इंग्लिश को सीख कर और ट्रायल करा है, सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि तुमने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। नेक्स्ट, थैंक यू मैम। यश ने हमारे बहुत सारे पॉइंट्स जो रखे यश ने, उनमें से मैं जो मुझे सबसे अच्छा लगा, यश ब्रिलियंट बच्चा, जो बहुत अच्छे से लगा वो ये लगा कि तुमने जैसे स्टार्टिंग करी, ठीक है ना, तुमने बहुत अच्छे से उसको स्टार्ट किया और तुमने अपने पूरे जो पॉइंट्स तुम्हें एसिमुलेट किए वो तुमने बाकायदा सोशली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली 3 उसके अंदर डिवाइड करके तुमने शुरू किया। द बेस्ट पार्ट जो मुझे तुम्हारा अच्छा लगा था वो रखा था कि तुमने डेटा रखा था अपने इंडिया से दूसरी कंट्री के बीच में, मेरे ख्याल से फर्टिलिटी रेट या कुछ उस पे
तो आपने डेटा रखा था। जब भी हम कभी डिबेट में या उसमें रहें तो कोशिश कीजिए कि अपने जो आप पॉइंट रख रहे हैं उसको हमेशा किसी से सैंक्शन या वेरीफाई करें। और अक्सर आप कर सकते हैं किससे, डेटा से, सेंसस से, या कोई भी ऐसी रिपोर्ट को आप वहां पे पेश कर सकते हैं। आप में से किसी ने भी किसी रिपोर्ट का यहाँ पे जिक्र नहीं किया, चाहे तो आप इकोनॉमिक सर्वे का कर सकते हैं, पुराने किसी कॉन्स्टिट्यूशन की उसका कर सकते हैं, किसी पुराने न्यूज़पेपर का बता सकते हैं। आप इसे इस तरह से शुरू कर सकते थे कि आप किसी न्यूज़पेपर की कोटेशन को, टाइटल को लेकर आते कि फला फला सन में यह हेडिंग आई थी। इससे साफ पता चल रहा है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ देश में क्या उन्नति का काम किया था और क्या डिस्ट्रक्शन का काम किया था। टैग 14 पे थे मुनिंद्र मीना। मुनिंद्र ने बहुत अच्छे से टेक्सास के बारे में इसमें बताया। मुनिंद्र, और भी अच्छा होता बेटा अगर आप टेक्सास को थोड़ा सा खुल के बता पाते, क्योंकि जो हमारे जो सामने जो सुन रहे होते हैं ना, जो आपका वक्तव्य सुन रहे हैं, जो आपका पॉइंट सुन रहे हैं, उनमें आपने बहुत कम टाइम में नो डाउट कोई नई चीज दी, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करते कि क्या कौन से टैक्सेस, क्योंकि उस टाइम पे टैक्सेस तो बहुत सारे थे, है ना, तो और भी अच्छा होता और ब्यूटीफाई हो जाता आपके इससे। लास्ट वन वाज राजेश सिंह। राजेश का मुझे जो बहुत अच्छी चीज लगी उनकी हिंदी भाषा। राजेश, मुझे तुम्हारी ये चीज अच्छी लगी कि तुमने जो भी अपने पॉइंट्स रखे थे उसमें हिंदी भाषा का एक जो होता है ना अच्छी वर्तनी का उसमें इस्तेमाल किया था। आपने यूपीएससी, आपने इवन जो इसमें इस्तेमाल किया और जो एग्जाम्पल्स दी मुंबई, बंगाल और दूसरे कैसे सिटीज को भी हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम में उनकी क्या पोजीशन थी, वो बहुत बेहतर तरीके से दिया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि पार्टिसिपेंट्स ने कैसे अपने अपने पॉइंट्स रखे थे। मुझे लगता है सबने ही बहुत बेहतर तरीके से अपने पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे। विदाउट एनी वेट, मैं मेरी तरफ से तीनों जो विनर्स हैं, मैं थर्ड से शुरू करती हूँ। थर्ड इज राजेश सिंह, द लास्ट प्रेजेंटर। राजेश, आप तीसरे स्थान पर हैं। सेकंड जो है वो है पीयूष मीना। सेकंड मेरी ओर से पीयूष। ओके मैम, थैंक यू मैम। पीयूष। और फर्स्ट जो है वो है यश। आई कांग्रेचुलेट। थैंक यू सो और मच। अच्छा किया। और मेरे ख्याल से पोजीशन तो देखो किसी ना किसी को देनी होती है, इसलिए टीचर भी जो बेस्ट उसमें होता है, जिसकी भाषा सही है, जिसमें कोई हकलाहट नहीं हुई है, जिसमें कोई टाइम गैप नहीं आया है, जिसने टाइम लिमिट पे खत्म कर दिया है, बहुत सारी चीजें होती है देखने के लिए। तो पोजीशंस आर मेरे लिए वन थिंग कि हाँ ठीक है एंड में देनी है किसी को, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमने पार्टिसिपेट किया और हमने प्रेजेंट किया। मुझे उन बच्चों को देखकर बहुत खुशी हुई जिन्होंने पहली बार इस तरीके के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट अगेन एंड अगेन, आई वांट टू अप्रिशिएट कर्मयोगी सोसाइटी, बिकॉज बहुत अभी ऐसे बच्चे हैं जो शायद रील्स देख रहे होंगे, यूट्यूब्स देख रहे होंगे, इंस्टास पे होंगे, बट हियर आर वी जो अपने आइडियाज को रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना रुझान शो कर रहे हैं कि यस वी आर सीरियस एडोलेसेंट, जो कुछ सीरियस तरीके का काम कर रहे हैं। सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स society and thank you for having me here. बहुत अच्छा लगा आपको। Ma'am, I want to ask something from you. Yes, Maninder, please. Ma'am, today I am very happy to see you too because you are very motivating us. Ma'am, my spoken English is very good, but I am not confident in front of you. First thing is that, and ma'am, I want to ask something you that recently you have written the book on psychology. So, ma'am, can you give advice how can we write a book if we have to write on any topic, on any content or any other thing? Muninder, writing a book is a tedious job. Thorough reading is the only thing what I can say. Thorough reading, better understanding of the concept, and a quick and smart way to understand the psychology and the learning pattern of your students or your readers. In my case, I just thought about my students, that what my students actually want to learn psychology as. I have written that book in Hindi. So my first thing was Hindi students have that vacuum कि उनके पास कोई किताब नहीं है. So reader वही पढ़ेगा जिसकी जरूरत है या जिसको नहीं किया. So very basic thing is thorough reading, thorough understanding of the concept and the requirement of the readers.
आप क्या लिख रहे हैं वो रीडर के रिक्वायरमेंट में है या नहीं है। सेकेंड चीज आपने जो कही बच्चा कॉन्फिडेंस के बारे में, इट्स ओके, कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग जो एक दिन में लर्न कर लिया आ गया, अभी मैंने कोशिश की और मुझे अभी आ गया। ट्राई करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मेन परफेक्ट, इवन विमेन को भी करता है बट मेन को परफेक्ट करने में जल्दी शायद हेल्प करता है। जोक्स अपार्ट, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए। हेलो मैम। हाँ पीयूष बच्चा बोले। मैम मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने मैम लाइफ में पहली बार ये चीज ट्राई की है, फर्स्ट टाइम मतलब कम्युनिकेट किया है मैंने पब्लिकली। तो अब मैम मैं आगे इसमें इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो मैम मुझे कुछ सजेशंस दीजिए जिससे कि मैं पब्लिकली स्पीच कर पाऊँ, पब्लिकली कम्युनिकेट इंटरेक्ट कर पाऊँ आगे भी इस तरह से। जैसा कि मेरा ये लैक है, इस जगह मेरी कमी है कि थोड़ा मैं चाहे से मैम रिटनली तो मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ पर ओरली नहीं कर सकता मैम मैं, इसलिए मैंने आज पहली बार ये ट्राई किया यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। और ये स्किन आ रही है। सिंपल सी चीज है पीयूष, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करें। कोशिश करें कि जब भी कोई ऐसे कॉम्पिटिशन्स हो, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म्स होंगे बेटा जहाँ पे आपको जज करने वाले आप ही के हम उम्र होंगे, दैट्स इट। उनसे फर्क कुछ टाइम बाद में आपको पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब आप किसी बड़े स्तर पर जाएंगे और अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो आपके पास में एक लंबी चेन होगी अपने एक्सपीरियंसेस की, और हम एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। सो ट्राई टू पार्टिसिपेट करो ज्यादा से ज्यादा। और सेकंड चीज है, जो आप जब पॉइंट्स बोल रहे थे तब मैंने देखा था, देखो आज आपने अगर किसी चीज पर बोला है तो आपने पढ़ा होगा, किसी ने थोड़ा कम, किसी ने थोड़ा ज्यादा पढ़ा होगा, लेकिन सब कुछ पॉइंट्स या कुछ इनसाइट्स अपने साथ में लेकर आते हैं। ओके, हर किसी चीज की जो है, आपके आइडियाज को अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप कहीं पे बोल रहे हो, फ्रेंड्स के बीच में, किसी स्टेज पे बोल रहे हो, कहीं पे भी, द ओनली थिंग विच मैटर्स इज आप क्या यूनिक चीज लेकर आएंगे उनके पास में। ठीक है, आपकी यूनिकनेस क्या होगी, और वो यूनिकनेस कब आ पाएगी, जब हम बहुत पढ़ेंगे। आज ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, वो तो यहाँ सब पढ़ के बैठे हैं यहाँ पे, तब आए जब आप उसका कोई ऐसा पॉइंट लेकर आए कि यस दिस इज समथिंग न्यू, ये कुछ सुनने में मजा है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की आदत डालिए, पढ़ने के उससे, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज कीजिए जहां आप उन आइडियाज को प्रेजेंट कर सको। धीरे धीरे देखना, यू विल बी द पर्सन जो बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है। यस मैम। वैसे तो मैम रिटर्नली तो मैम जैसे मार्क्स भी अच्छे आते हैं, काफी रिटर्नली तो आते हैं मैम, बस ओरली है मैम जो कमी है वो आइडेंटिफाई आ जाएंगे पीयूष, वो प्रैक्टिस से आ जाएंगे। ट्राई टू यूज, जैसे आपने बताया। हाँ, अरे भाई ये कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बनाया ही क्यों है, ये सोसाइटी के पीछे एम ही क्या है, इस सोसाइटी के पीछे बनाने के एम ही यही है, फॉर दैट डेवलपमेंट। जो बच्चे कंपटीशन उसमें जाते हैं और पर्सनालिटी में कहीं एक पार्ट उनका मिसिंग होता है कि कौन गाइड करेगा, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो आप कीजिए, ऐसी सोसाइटीज को यूज कीजिए आप। यस मैम, ओके। मैम you talk right, मतलब you have to put your visions and ideas in, but it is not possible in 3 minutes. If we have another content and we have new ideas, it is not possible. You also think so? Rajesh, that is the smartest thing you need to learn, na? When you will write your answers in RAS and IAS, na, you have to learn that articulation to write your ideas in 10 to 15 words, in 50 words, in 70 words. You know, that is the matter of your learning only, that you need to learn how to accumulate your ideas and to present in the given time limit only. This is the thing what we are learning here, no? This is the thing. And it's okay. It's fine. Then you will learn the pauses, the connotations, what we need to use, the startup, the gear up words, the quotations. This we need to learn. यही तो learn करना है. Ideas तो बेटा बहुतों के पास में आ भी जाते हैं, but उसको present कैसे करना है, वही तो कला है, वही तो कला है। एक बच्चा है जो एग्जाम के लिए बहुत पढ़ रहा है, 5 पेजेस में आंसर लिखना, इतना पढ़ रहा है कि फर्स्ट 3 पेजेस तो उसने इंट्रोडक्शन में ही निकाल दिए, और एक बच्चा है आधा पेज का इंट्रोडक्शन डाल रहा है और खींच के उसने पूरा आंसर लिख दिया। तो 5 पेज, दोनों के पास 5 पेज ही थे, लेकिन कौन ज्यादा आइडियाज एक्यूमुलेट करेगा, जो बल्कि आधा पेज ही जिसने इंट्रोडक्शन डाला है। हम तो इन दिनों में बीइंग अ टीचर
डेली की मेरे 50 to 60 कॉपीज सामने आती है बच्चों, एंड बिलीव मी, मैं दिन भर यही देखती रहती हूँ कि बहुत बच्चों के पास में आइडियाज होते हैं, भाषा होती है, सब चीजें होती है, बट लिखने की कला नहीं है। सब चीजें लिख That's रहे right. हैं, और कुछ कॉपीज ऐसी आती है जिसमें इतने अच्छे से डायग्राम्स बने होते हैं, ये होते हैं, तो हमें थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट वहां पे नजर जाएगी। इसी तरह से हमारे जब हम बोलते हैं तब का होता है, हम पूरा थोड़ी कोई सुनेगा, जो पॉइंट बोला आपने, अच्छा वहां गया दिमाग, ओके हाँ ये कुछ यूनिक था इसके, उसमें आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा राजेश, वो भी आ जाएगा। मैम ये रेगुलरली कंडक्ट हो सकती है क्या ये सीरीज? रेगुलरली कंडक्ट हो सकती है क्या सीरीज? हाँ, जैसा कि पीयूष, मैं आपको बता दूं कि ये रेगुलरली तो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि बाकी बच्चे रहते हैं जो सोसाइटी में जो मेंबर है, उनको भी काम रहते हैं। हाँ, ये जरूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा ये फर्स्ट एपिसोड था, तो मैं हो सका तो जल्दी से जल्दी हम एक और नया लाएंगे, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हम जैसे करवाएंगे। अभी तो डिबेट से शुरू किया है, हम सोच रहे हैं क्विज से संबंधित करवाए, मतलब स्टूडेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए जितने भी हो सके उतने सारे प्रोग्राम्स हम करवाएंगे, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और डिबेट प्रोग्राम है ये, हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि हर महीने में हो सका तो एक तो जरूर करवाएंगे, और उससे ज्यादा हो सका तो हम करवा सकते हैं। और अदर जैसे प्रोग्राम्स है उसमें भी आप पार्टिसिपेट्स कीजिए, और आपको बताइए। कल्याण जी जरूर। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चा, मैं एक चीज देखती हूँ कि यू आर डूइंग इनक्रेडिबल जॉब इन providing some newspaper clippings, the articles, the one line and one point answers. You are doing incredible job. तुम क्यों नहीं एक है ना ऐसे मतलब क्विज कंपटीशन टाइप क्यों नहीं करवाते हो, करंट अफेयर्स का, 2 months के करंट अफेयर्स का, और ये तुम जो तुम उसी में क्लासिफाई कर रहे हो, जो तुम अपने क्वेश्चंस उसी ग्रुप में डाल रहे हो, आप उन्हीं को एक्यूमुलेट करके हर 2 months में एक क्विज कंपटीशन कराओ, करंट अफेयर्स, दैट्स इट। तो जो जुड़े हुए रहेंगे उनको बहुत बेनिफिट होगा उससे। सही में आपने सीखा, जैसे कि हम क्या है कि वैसे हमारा उद्देश्य, हमने ये पहले सोचा था कि सारे बच्चे तो करंट अफेयर्स से मतलब पर डे के करंट अफेयर्स को पढ़े, बाकी आपने जो कहा उसको भी हम जैसे कि क्विज कंपटीशन करवाएंगे, और उसकी सीरीज का नाम हमने सोचा नहीं, बाकी सोच लेंगे। तो उस हिसाब से हम, जैसे कि हमारा मैनिपुलेट रहेगा, उस हिसाब से हम पूरा जो भी क्विज कंपटीशन करेंगे तो उसमें करंट अफेयर्स को और अदर्स जैसे कि क्वेश्चन है उनको भी शामिल करेंगे। बिल्कुल, उसको बहुत इजी सा है ना, प्रश्नोत्तरी करके या कुछ ऐसा करके और उसमें कर दो, क्योंकि देखो हर सैटरडे पॉसिबल नहीं है, हर डे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरे स्टफ भी होते हैं हमारे पास में, बट कीप इट इन द एंडिंग ऑफ मंथ और 2 months के एंड में कर लो, तो उससे एक अच्छा सा तुम्हारा हो जाएगा। Man, if we have 20 or 10 persons, we can raise our hands in the quiz competitions, and this will have to calculate which is the masters in current affairs. Yes, that you can do. वो तो हम पर है कि हम कितना इंटरेस्टिंग बनाएं। कल्याण, तुम्हारे पास बहुत अच्छे आइडियाज आ रहे हैं बच्चा, you can use them as well, and I'm very happy to see you people working, because that was the motive from 2 to 3 teachers कि कैसे ये काम करें और कैसे ये बनाएं, but I'm very happy to see you people, you are working so hard on it. Continue that effort, may God bless you, continue that effort, होगा। कर्मयोगी सोसाइटी अच्छा काम कर रही है, कीजिए। Thank you. We also thank you, madam, for joining. That's all from my side. Now I want to take leave because it's my puja time now. So thank you once again. May God bless you. Sure. Happy evening. Okay. Okay, bachcho. Thank you. Thank you, madam.